अच्छा जी, so now look at task 5. Alice wants customers to be able to create an account with Treeside Holidays. She wants them to create an account using a web page. Using the file account.html, create a web page to meet the following requirements. When the generate username button is clicked, a username for the customer is generated below the button. So your username should appear below the button. Customer's username must be their forename, their surname, and the year of their birth joined together. ठीक हो गया? उसके बाद when the submit password button is clicked, the page must be rewritten to display only one of the following messages. If the passwords match the text your password has been set must be displayed. If the passwords do not match, your passwords did not match, please try again must be displayed. Okay. Programmer comments must be added to annotate each requirement. Save your web page as my account. First step, open up your web authoring package, drag drop your file, look at the design. How many input boxes do you see? 5. How many buttons do you see? 2. Open this up in your browser now. Okay? And then, if possible, test it out. Let's say I'm going to add the first name. And generate username. Nothing happens. Okay. Let's add a password here. Submit password. Nothing happens. So probably no script or no code is being written. ठीक है, इसको बंद करो. अब हमने क्या करना है, जब हम ड्रीमवीवर में वापस आएंगे तो हमने क्या करना है कि हमने इनके कोड्स चेक करने. हम इनपुट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, कोड में जाएंगे. इनपुट बॉक्स है, आईडी क्या है, F name, so ID is given, surname का ID is given, date of birth का ID is given. यूजरनेम के ऊपर बटन क्लिक होगा तो किसको कॉल कर रहा है, यूजर को. So this function is also given, the name of the function is given. Okay, we are to display the username below the button. Okay, for that design, this is my button, I'll press enter. Over here I need the username. ठीक है, मैंने खुद से क्रिएट किया. कोड में आओ, this is where the enter is being pressed. Remove this and we will change it to H1. ठीक हो गया. इसको रिफर करने के लिए आई एम गोइंग टू गिव इट एन ID of, let's say, user name. इसको आपने नाम देना है कोई भी. ठीक है, so user name is going to be here. अब आ जाओ इधर. You have to add the script. The very first thing, a very quick check whether your script works or not. Straight away link it with your button. Button is basically calling what? User function, right? So I'm going to quickly type in a function which is going to be user, and I'm going to add the simplest command to see whether the button runs this function or not. So अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास पॉपअप आएगा हेलो का, ऐसा ही है. So we click on it, we get the pop-up. So that means my function is linked with the button. अब फंक्शन में मैंने करना क्या है, मैंने फोरनेम, सरनेम और ईयर जो डेट ऑफ बर्थ में डालेंगे वो हमने कंकैटिनेट करके लिखना है. ओके, उसके लिए हम क्या करते हैं, विल टाइप इन अ वेरिएबल, लेट्स से फर्स्ट नेम fn लिख देते हैं. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू fname डॉट वैल्यू, सॉरी, ओके, fn इक्वल्स टू fname डॉट वैल्यू. ये हो गया. एक वेरिएबल बनाया sn which is equals to the id of surname which is sname dot value. ठीक है. अच्छा, उसके बाद एक वेरिएबल बनाया dob का, हम कर देते हैं इसको डेट ऑफ बर्थ. ठीक है, db equals to dob dot
value. Done. We are to display these below the button. वेरिएबल हो गया. अच्छा, अब हम क्या करते हैं, concatenate के लिए क्या करना है, जो हमने आईडी बनाया यूजर नेम, यहां पे हमने डिस्प्ले कर. ठीक है, सो सिंपली हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. द आईडी इज यूजर नेम dot inner HTML. Students tend to forget to write this. Dot inner HTML equals to what? FN plus SN plus DB. Done? अच्छा, अब इसको चला के देखो. कहाँ? हाँ, इट्स ओके. आप चलाओ. हमने चेक किया था ना, इट वॉज वर्किंग. अब यहां पे देखो, नेम सरनेम डालो, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालो. अब ये चेक करो, इफ आई क्लिक ऑन द यूजर नेम, it should concatenate everything. Click on username, concatenates everything. Point is कि हमने डेट ऑफ बर्थ में ईयर बताना है, बाकी सारी चीजें नहीं चाहिए. We don't want to display the date, we don't want to display the month or the date separators. Can you count the number of characters in the date? How many are there? 2, 4 and 8, and there are 2 separators, so total 10. Okay, मुझे कितने कैरेक्टर्स चाहिए which are at the end? ठीक है, अच्छा, so 1 2 3 4 5 6 7 onwards मुझे कैरेक्टर चाहिए. 7 8 9 10. ठीक है, अब ये देखो इसको कैसे करते हैं. There is a function dot value dot substring. It's just like mid function in Excel. ठीक है, अब इसके अंदर हमने वैल्यू तो देनी नहीं है, वैल्यू तो हमारी ऑलरेडी स्पेसिफाइड है. हमने देना है कैरेक्टर्स. सो कैरेक्टर्स अप अंटिल 6, 4. मुझे क्या चाहिए था, 7 ऑनवर्ड्स, राइट? मैंने क्या लिखा, 6, 4. 4 मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, बट 6 की क्या साइंस है इसमें? ओके, इसकी अब आप जो भी अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहो बना सकते हो. विल जस्ट चेक दिस वेदर इट वर्क्स और नॉट. ठीक है, अभी इसके ऊपर बात करते हैं. सो वी ऐड आवर फर्स्ट नेम, नाउ लुक. अब ये जरा बेटा गौर से देख सुनो. यू कैन से कि 6 तक इग्नोर कर दे और 7 ऑनवर्ड्स 4 कैरेक्टर्स ले ले. हाउएवर इसकी एक्चुअल साइंस ये है कि कंप्यूटर्स में जो काउंटिंग होती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0. सो अगर ये मेरा कैरेक्टर 0 है, ये 1 है, ये 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट ईयर जो है एक्चुअली मेरा 6th कैरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, नॉट 1. एक्सेल में उल्टा होता है, प्रोग्रामिंग में इट्स डिफरेंट. ठीक है, सो इट स्टार्ट फ्रॉम 0. सो 0 1 2 3 4 5 and 6. So from 6 I need 4 characters, and these functions are listed in your book in a table if you have gone through it. एक length उस दिन मैंने आपको करवाया in exercise 2 I guess. एक substring आ गया. ठीक है, so जरा टेबल को, अच्छा ये वाली चीज हो गई, यूजर नेम जनरेट हो गया. अब हमने क्या करना है, दूसरी चीज क्या है, पासवर्ड वाली. ठीक है, that needs to be what, linked with this function password. This is another function which means I do not have to write my instructions within this function. ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं and we will write another function. Again very quick check, password round bracket open close curly bracket open close, and we type in alert and we'll type in a simple
टेक्स्ट, ये लिंक करेंगे हम किससे, सेकंड बटन के साथ, ये दूसरा फंक्शन में लिख रहा हूं, ठीक है। इसको रन करो, सबमिट पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, पॉपअप होगा, ठीक है। सो मेरा बटन के साथ लिंक हो गया फंक्शन, इट वर्क्स। अब मैंने चेक क्या करना है, पासवर्ड की वैल्यूज, पासवर्ड कहां पे आ रहे हैं, दो इनपुट बॉक्सेस में, दो इनपुट बॉक्सेस क्या है, पासवर्ड 1, पासवर्ड 2, ठीक है। सो मैं इसको क्या करता हूं, वेरिएबल p1, वेरिएबल p1 कर दिया इक्वल्स टू पासवर्ड 1 डॉट वैल्यू, देन वेरिएबल p2 इक्वल्स टू पासवर्ड 2 डॉट वैल्यू। अब सिंपल हमने कंपैरिजन करना है, इफ p1 इज इक्वल्स टू p2, ठीक है, नो, then it says password I guess saved or something, yeah, password has been set. Acha, अब the point is it says the document needs to be rewritten, document needs to be rewritten to display this message, मतलब रीराइट हो जाए ना डॉक्यूमेंट, जो है वो रीराइट हो जाए, एक नया डॉक्यूमेंट बन जाए जिसपे सिर्फ ये मैसेज आए। अच्छा खैर, वैल्यू ट्रू हमने डालनी है, ये आपने किया हुआ, आपको सिर्फ याद नहीं है, नो नो, अब नया डॉक्यूमेंट देखो तो सही ना। हाउ डू वी टेक द सिंपल आउटपुट ऑन द HTML, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो हमने सिर्फ करना ये है कि इफ दिस इज इक्वल, तो हमने कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट नॉट अलर्ट नॉट इनर HTML ऑन अ न्यू डॉक्यूमेंट, राइट दिस, क्या है, पासवर्ड हैज बीन सेट, ठीक है। अच्छा if listen, if this is not equal, then yeah, retype, ठीक है, retype your password, whatever the text is, retype your password और re-enter your password, ठीक है, सिंपल। अब इसको टेस्ट करो। Now in this scenario if they are blank, रीटाइप होना है, लेकिन एक्चुअली क्या है, कंटेंट तो मैच हो रहा है ना, तो अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो क्या आना चाहिए, पासवर्ड इज सेट, ठीक है, विच मीन्स कि ये टेक्निकली सही नहीं है, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर एक और इफ डाल देना चाहिए, ठीक है। सो एल्स के अंदर हम क्या करते हैं कि हम एक और इफ डाल देते हैं, इफ p1 is equals to empty or p2 equals to empty, if that happens it should be retype your password, yeah, you can also address कि p1 is empty या p2 is empty, ठीक है, या password 1 और password 2 is empty, ये भी कर सकते हो। आपने इसको जितना प्रिसाइज करना है कर लें, but your actual requirement is done up until here. If they are going to match, it will say password is set. If they don't match, it will say retype your password. Test it out. At this point it says password set. If I say that this is my first password, this is my second, they don't match, so it says retype your password. This was the solution. Sorry, वो तो मैंने एड्रेस नहीं ना किया, मैं यही तो कह रहा हूं कि आप उसको जितना प्रिसाइज करना चाहो कर सकते हो। अगर एग्जाम की रिक्वायरमेंट देखो, उसमें कहीं पे उसने लिखा है कि यार यू कैन लीव इट ब्लैंक, यू शुड आल्सो चेक वेदर दे आर ब्लैंक और नॉट, उसने, या होता तो है, एग्जाम की रिक्वायरमेंट देखो ना बेटा, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 80 मार्क्स का नहीं है, तो कोई बात नहीं। अच्छा आगे देखो, आगे देखो, आगे लिसन 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 लिसन, सेकंड पोर्शन देखो इसका, इससे आपके कुछ फंक्शंस जो कि आपने नहीं पढ़े वो आपके थ्रू से डिस्कस हो सकते हैं। कहता है ओपन द फाइल questions.rtf, एंटर योर आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन प्रोग्रामिंग इन द प्लेस इंडिकेटेड इन द डॉक्यूमेंट।
Describe what is meant by a function in programming using no more than 150 words. Evaluations अब आपकी theoretical paper में आती है, but पहले अगर आता है तो कोई बात नहीं, इसको लिख सकते हैं आप. What is a function? It returns a value to your main program. ठीक है. It needs to be called. Very nice. सही है. अच्छा, second part देखो, which is more important about functions. A string of text has been stored in the variable what? Word. Okay. Variable word equals to ICT is amazing. No, ICT is amazing. IT is not amazing, है ना? अच्छा, अब ये देखो कि I'm going to do this on a separate HTML. However, you are supposed to do it in your Word document. ठीक है, आपने इसको explain करना है, लेकिन I'm just going to test the functions कि वो करते क्या है. ठीक है, सेव करते हैं. Let's say test.html. I will create a script. अच्छा, listen, हमने क्या स्क्रिप्ट बनानी है? We are to declare a variable called word और उसके ऊपर वैल्यू क्या है? ICT is amazing. ठीक है जी. अच्छा बेटा जी, गौर से जरा देख लो एक दफा. कहते हैं give the answer that would be extracted for each of the JavaScript commands. Word.length. Length क्या करता है? Zenab. Length. In Excel, length function क्या करता है? Number of characters. ठीक है. So yes, you are right, Rija. अच्छा जी, अब अगर हम इसको लिखते हैं, अब उसके साथ कैरेक्टर्स गिनो. ICT is 3, is 2 5 और ये कितने हैं? 7 12 और 2 14. सो हम कहते हैं document dot write and we are going to take in the word. ठीक है, word dot length. ठीक है, इसको आउटपुट करो, comes out to be 14. सो लेंथ क्या करता है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करता है. ओके, नेक्स्ट फंक्शन उससे क्या लिखा हुआ? वर्ड स्लाइस 8 11. अब इसको एज इट इज लिखो और देखो क्या निकल रहा है. सो वर्ड डॉट स्लाइस इज जस्ट लाइक ट्रिम 8, 11. ये लिखा हुआ ना 8 11, राइट? Now run this. देखो क्या आ रहा है? MAZ. Now look at MAZ. Look at MAZ. MAZ. Right? अब 8 क्या है? 8 देखो क्या है? ICT 3 space 4 5 6 7 8. 0 से स्टार्ट होगा, तो 8 से स्टार्ट हुआ, 11 पे क्या हो रहा है? लेकिन 11 तो नहीं आ रहा है ना, 11 से पीछे वाला कैरेक्टर आ रहा है. सो इट्स ठीक है. सो इट बेसिकली मीन्स कि स्टार्टिंग फ्रॉम 8 एंडिंग एट 11th कैरेक्टर, विच मीन्स 8 9 10. 11th इज नॉट गोइंग टू बी इंक्लूडेड. ठीक है, सो स्लाइस में 11th कैरेक्टर नहीं आ रहा. ठीक है. अच्छा, उसके अलावा दूसरा फंक्शन उससे लिखा है कैरेक्टर एट 3. ओके, दिस फंक्शन character at and this is 3. अब आप मुझे बता सकते हैं 3 के ऊपर कौन सा कैरेक्टर? इट्स अ स्पेस. सही है, मैं इसको 0 डाल देता हूं ताकि आपको याद रहे कि यहां पे स्पेस थी. ठीक है. सो कैरेक्टर एट 3 इज बेसिकली
the space now a 0, right? So if you display this, जाहिर बात है ब्लैंक आएगा, मैंने इसीलिए वहां पे 0 डाल दिया ताकि आपको पता चल जाए कि दिस इज एक्चुअली एट 3, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है. So if this would have been a space, you run it, you won't get to see anything, space is still there, ठीक है. अच्छा, यहां पे क्या है, वही चीज आ गई ना. So this was the first time the functions were targeted, और उसने उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जो कि आप अपने ड्रीमवीवर में ट्राई आउट करके उसको बड़े आराम से आंसर कर सकते थे, बिकॉज वी आर ट्राइंग दिस होल थिंग आउट इन ड्रीमवीवर, गेटिंग टू सी द रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स की बेसिस पे हम वर्ड डॉक्यूमेंट फिल आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. सही है. सो नाउ वर्ड डॉट सबस्ट्रिंग को करो 7 वर्ड डॉट सब string, and this is 7 comma 7. Can you tell me the answer? 7 7. This is 0 1 2 3 4 5. पूरा अमेजिंग है. ठीक है. So this was the complete solution to your exercise what? 5.